day to all my dear lovely watcher. Let's start our video. Unit 1 Class 10 Chapter 1 A Letter to God. भगवान को एक पत्र. Writer है G.L. Fewens. Before you read. They say faith can move mountains. कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है. But what should we put our faith in? लेकिन हमें अपना विश्वास किस पर रखना चाहिए? This is the question this story delicately poses. यह कहानी इसी सवाल को बड़े ही नाजुक ढंग से उठाती है. Lencho is a farmer. Lencho एक किसान है. Who writes a letter to God. जो भगवान को एक पत्र लिखता है. When his crops are ruined. जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं. Asking for 100 pesos. और उनसे 100 पैसों मांगता है. Does Lencho's letter reach God? क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? Does God send him the money? क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? Think, सोचिए, what your answers to these questions would be, कि इन सवालों के आपके जवाब क्या होंगे? And guess, और अंदाजा लगाइए, how the story continues, कि कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? Before you begin to read it. इससे पहले कि आप इसे पढ़ना शुरू करें. Activity 1. One of the cheapest ways to send money to someone is through the post office. किसी को पैसे भेजने का सबसे सस्ता तरीका पोस्ट ऑफिस है. Have you ever sent or received money in this way? क्या आपने कभी इस तरह से पैसे भेजे या प्राप्त किए हैं? Here is what you have to do. यहाँ आपको यह करना है. As you read the instructions, जैसे ही आप निर्देश पढ़े, discuss with your teacher in class the meanings of these words. क्लास में अपने टीचर से इन शब्दों के मतलब पर बात करें. Counter, counter clerk, appropriate, acknowledgement, counterfoil, record. Consult a dictionary if necessary. अगर जरूरी हो तो डिक्शनरी देखें. Are there words corresponding to these English words in your languages? क्या आपकी भाषाओं में इन अंग्रेजी शब्दों से मिलते जुलते शब्द हैं? Inside the post office, go to the counter marked money order. डाकघर के अंदर मनी ऑर्डर लिखे काउंटर पर जाएं. Buy a money order, MO, form by paying 50 पैसे to the person behind the counter. काउंटर पर बैठे व्यक्ति को 50 पैसे देकर मनी ऑर्डर MO का फॉर्म खरीदे. Fill in the appropriate boxes in the form, preferably in block letters. फॉर्म में दिए गए सही खानों को भरें, हो सके तो बड़े अक्षरों में. Pay the counter clerk the amount of money to be sent along with the charges. काउंटर क्लर्क को भेजी जाने वाली रकम और उसके साथ लगने वाले शुल्क का भुगतान करें. Take back the MO, acknowledgement counterfoil for your record. अपने रिकॉर्ड के लिए MO की रसीद वापस ले लें. 2. Fill out the money order form given below using the clue follow the form. नीचे दिए गए मनी ऑर्डर फॉर्म को फॉर्म के साथ दिए गए संकेत का उपयोग करके भरें. Think about who you will send the money to and how much. सोचिए कि आप किसे पैसे भेजेंगे और कितने. You might want to send money for a magazine subscription or to a relative or a friend. हो सकता है आप किसी मैगजीन के सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे भेजना चाहें या किसी रिश्तेदार या दोस्त को. Or you may fill out the form with yourself as sender and your partner as receiver. या आप फॉर्म में भेजने वाले के तौर पर अपना नाम और पाने वाले के तौर पर अपने पार्टनर का नाम भर सकते हैं. Use a part of your pocket money. अपनी पॉकेट मनी का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करें and submit the form at the nearest post office to see how it's done. और यह देखने के लिए कि यह कैसे किया जाता है, फॉर्म को नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जमा कर दें. See how your partner enjoys getting money by post. देखिए कि आपके पार्टनर को डाक से पैसे पाकर कितना अच्छा लगता है. Notice that the form has 3 parts. ध्यान दें कि फॉर्म के 3 हिस्से होते हैं. The money order form,
the part for official use and the acknowledgement. Money order form, सरकारी इस्तेमाल के लिए हिस्सा और रसीद. What would you write in the space for communication? आप space for communication में क्या लिखेंगे? Let's read. The house, वह घर, the only one in the entire valley, जो पूरी घाटी में अकेला था, sat on the crest of a low hill. एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बना था. From this height, इस ऊंचाई से, one could see the river and the field of ripe corn. कोई भी नदी और पके हुए मक्के के खेत देख सकता था, dotted with the flowers, जो फूलों से भरे थे. That always promised a good harvest. जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे. या उस जगह पर हमेशा फसलों की पैदावार अच्छी होती थी. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. धरती को बस एक जोरदार बारिश, या कम से कम एक हल्की बौछार की जरूरत थी. Throughout the morning Lencho, पूरी सुबह लेंचो, who knew his fields intimately, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, had done nothing else but see the sky towards the northeast. लेंचो ने उत्तर पूर्व की ओर आसमान देखने के अलावा और कुछ नहीं किया था. Now we are really going to get some water, woman. अब हमें सचमुच कुछ पानी मिलने वाला है. The woman who was preparing supper, वह औरत जो रात का खाना बना रही थी, replied, उसने जवाब दिया, Yes, God willing. हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो. The older boys were working in the field, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, while the smaller ones were playing near the house, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे, until the woman called to them all, तभी उस औरत ने उन सबको आवाज दी, come for dinner. आओ, डिनर खा लो. It was during the meal, खाना खाते समय ही, that, just as लेंचो had predicted, ठीक जैसा लेंचो ने अंदाजा लगाया था, big drops of rain began to fall. बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी. In the northeast huge mountains of clouds could be seen approaching. उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए दिखाई दे रहे थे. The air was fresh and sweet. हवा ताजी और सुहानी थी. The man went out for no other reason, वह आदमी किसी और कारण से बाहर नहीं गया, than to have the pleasure of feeling the rain on his body, बल्कि अपने शरीर पर बारिश को महसूस करने का मजा ले सके. मतलब, वह आदमी बाहर सिर्फ इसलिए गया, ताकि वह अपने शरीर पर बारिश की बूंदों को महसूस करने का आनंद ले सके. And when he returned he exclaimed, और जब वह वापस लौटा तो खुशी से बोला, These aren't raindrops falling from the sky. ये जो आसमान से गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं. They are new coins. ये तो नए सिक्के हैं. The big drops are 10-cent pieces. बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं. And the little ones are 5s. और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं. With a satisfied expression, चेहरे पर संतोष का भाव लिए, he regarded the field of ripe corn. उसने पकी हुई फसल के उस खेत को देखा, with its flowers, जिसमें फूल खिले थे, draped in a curtain of rain. और जो बारिश के पर्दे में लिपटा हुआ था. But suddenly a strong wind began to blow. लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी, and along with the rain very large hailstones began to fall. और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे. These truly did resemble new silver coins. ये सचमुच नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे. The boys, exposing themselves to the rain, लड़के बारिश में भीगते हुए, ran out to collect the frozen pearls. उन जमे हुए मोतियों को बटोरने के लिए बाहर दौड़ पड़े. It's really getting bad now. अब तो सचमुच हालत खराब होती जा रही है, या अब तो सचमुच बुरा होता जा रहा है. Exclaimed the man. उस आदमी ने कहा. I hope it passes quickly. मुझे उम्मीद है कि यह जल्दी ही गुजर जाएगा. It did not pass quickly. लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरा.
For another hail rained on the house. 1 घंटे तक ओले घर पर बरसते रहे. The garden, बगीचे, the hillside, पहाड़ी ढलान, the cornfield, मक्के के खेत, on the whole valley. और पूरी घाटी पर. मतलब 1 घंटे तक ओले घर, बगीचे, पहाड़ी ढलान, मक्के के खेत और पूरी घाटी पर बरसते रहे. The field was white. खेत सफेद हो गया था, as if covered with salt. मानो उस पर नमक बिछा दिया गया हो. Not a leaf remained on the trees. पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था. The corn was totally destroyed. मक्का पूरी तरह से बर्बाद हो गया था. The flowers were gone from the plants. पौधों से फूल झड़ गए थे. Lencho's soul was filled with sadness. लेंचो का मन उदासी से भर गया. When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field, तो वह खेत के बीच में खड़ा हुआ, and said to his sons, और अपने बेटों से कहा, a plague of locusts would have left more than this. टिड्डियों का झुंड भी इससे ज्यादा कुछ तो छोड़ ही देता. The hail has left nothing. ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा. This year we will have no corn. इस साल हमें कोई मक्का नहीं मिलेगा. That night was a sorrowful one. वह रात बहुत दुख भरी थी. All our work for nothing. हमारी सारी मेहनत बेकार गई. There's no one who can help us. कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके. We'll all go hungry this year. इस साल हम सब भूखे रहेंगे. But in the hearts of all, लेकिन उन सभी के दिलों में, who lived in that solitary house, जो उस अकेले घर में रहते थे, in the middle of the valley, घाटी के बीच में, there was a single hope, एक ही उम्मीद थी. मतलब, लेकिन घाटी के बीच, उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में बस एक ही उम्मीद थी. Help from God. ईश्वर से मदद. Don't be so upset. इतने परेशान मत होइए, even though, भले ही, this seems like a total loss. यह पूरी तरह से नुकसान जैसा लग रहा हो. Remember, याद रखिए, no one dies of hunger. भूख से कोई नहीं मरता. That's what they say. लोग यही कहते हैं. No one dies of hunger. कोई भी भूख से नहीं मरता. All through the night, पूरी रात, लेंचो thought only of his one hope. लेंचो बस अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा. The help of God, भगवान की मदद. Whose eyes, as he had been instructed, see everything, जैसा कि उसे सिखाया गया था. भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं. Even what is deep in one's conscience. यहाँ तक कि इंसान के मन की गहराइयों में छिपी बातें भी. लेंचो was an ox of a man. लेंचो एक बहुत ही मेहनती इंसान था. Working like an animal in the fields. वह खेतों में जानवरों की तरह जी तोड़ मेहनत करता था. But still he knew how to write. फिर भी उसे लिखना आता था. The following Sunday, अगले रविवार को, at daybreak, सुबह होते ही, he began to write a letter. उसने एक चिट्ठी लिखना शुरू किया, which he himself would carry to town, जिसे वह खुद शहर ले जाकर, and place in the mail. डाक में डालने वाला था. It was nothing less than a letter to God. यह भगवान के नाम लिखी गई एक चिट्ठी से कम नहीं थी. God, he wrote, हे ईश्वर, उसने लिखा, if you don't help me, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की, my family and I will go hungry this year. तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे. I need 100 pesos in order to sow my field again. मुझे अपने खेत में दोबारा बुवाई करने के लिए 100 पैसों की जरूरत है. And to live until the crop comes. फसल आने तक गुजारा करने के लिए. मतलब, मुझे अपने खेत में दोबारा बुवाई करने और फसल आने तक गुजारा करने के लिए 100 पैसों की जरूरत है. Because the hailstorm. क्योंकि ओलों के तूफान ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा. He wrote to God on the envelope. उसने लिफाफे पर भगवान को
लिखा, पुट द लेटर इनसाइड, पत्र उसके अंदर डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान था, वेंट टू टाउन, शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक टिकट लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर में भी मदद करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, अपने बॉस के पास जोर जोर से हंसते हुए गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें भगवान के नाम लिखा वह पत्र दिखाया। नेवर इन हिज करियर, अपने करियर में कभी नहीं, एज अ पोस्टमैन, एक डाकिया के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी ऐसा पता मालूम था या देखा था। मतलब, डाकिया के तौर पर अपने पूरे करियर में उसने कभी ऐसा पता नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, एक मोटा मिलनसार आदमी, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, भी हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी मेज पर पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड, बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मुझ में भी उस आदमी जैसा विश्वास होता, हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। मतलब, काश मुझ में भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ पत्राचार शुरू कर दिया। पत्राचार का मतलब लिखित रूप में संदेशों, सूचनाओं या पत्रों का आदान प्रदान करना। इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, लेखक का भगवान पर से विश्वास न डगमगाए, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, इसके लिए पोस्टमास्टर को एक उपाय सूझा, आंसर द लेटर, उस पत्र का जवाब देना। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट, तो यह साफ हो गया, दैट टू आंसर इट, कि उसका जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, उसे केवल सद्भावना, स्याही और कागज से कहीं ज्यादा चीजों की जरूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, फिर भी वह अपने फैसले पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा खुद दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कई दोस्तों ने वो ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, भी पुण्य के काम के लिए कुछ न कुछ देने की जिम्मेदारी निभाई। मतलब, उसने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा खुद दिया, और उसके कई दोस्तों ने भी पुण्य के काम के लिए कुछ न कुछ देने की जिम्मेदारी निभाई। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए यह असंभव था, टू गैदर टुगेदर, एक साथ इकट्ठा करना, द 100 पेसोस, 100 पेसो। मतलब, उसके लिए 100 पेसो एक बार में जमा करना नामुमकिन था। इसलिए, ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, वह किसान को भेज सका, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से बस थोड़ा ही ज्यादा। मतलब, वह किसान को आधे से कुछ ही ज्यादा पैसे भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसे एक लिफाफे में रखे, एड्रेस टू लेंचो, जिस पर लेंचो का पता लिखा था, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग, और उसके साथ एक चिट्ठी भी रखी, ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड, जिस पर दस्तखत के तौर पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, भगवान। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, लेंचो हमेशा से थोड़ा पहले आ गया, टू आस्क, यह पूछने के लिए, इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी आई है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वह खुद डाकिया ही था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे चिट्ठी सौंपी, while the postmaster, जबकि पोस्टमास्टर, experiencing the contentment of a man,
एक पुरुष की संतुष्टि का अनुभव करते हुए, हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने अच्छा काम किया हो। मतलब, एक अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को मिलने वाले संतोष का अनुभव करते हुए लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अपने दफ्तर से यह सब देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। पैसे देखकर लेंचो को जरा भी हैरानी नहीं हुई। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास इतना पक्का था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन उसे गुस्सा आ गया। When he counted the money, जब उसने पैसे गिने। मतलब, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसे गुस्सा आ गया। God could not have made a mistake, भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती थी। Nor could he have denied लेंचो, और न ही वे लेंचो को वह देने से मना कर सकते थे। What he had requested, जिसकी उसने गुजारिश की थी। Immediately, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहां रखी आम लिखने वाली मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखने लगा। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, लिखते समय उसके माथे पर बहुत सारी सिलवटें पड़ रही थी, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, क्योंकि अपने विचारों को व्यक्त करने में उसे काफी जोर लगाना पड़ रहा था। When he finished, जब उसने लिखना पूरा कर लिया, he went to the window to buy a stamp, तो वह खिड़की पर जाकर एक टिकट खरीदा, which he licked, जिसे उसने चाटा, and then affixed to the envelope with a blow of his fist, और फिर अपनी मुट्ठी से जोर से मारकर लिफाफे को चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, जिस पल वह चिट्ठी डाकपेटी में गिरी, the postmaster went to open it. पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए चला गया। It said, उसमें लिखा था, God, of the money that I asked for, हे ईश्वर, मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे, only 70 pesos reached me. उनमें से केवल 70 पैसों ही मुझे मिले हैं। Send me the rest, बाकी पैसे भी मुझे भेज दीजिए, since I need it very much, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। But don't send it to me through the mail, लेकिन उन्हें डाक से मत भेजिएगा, because the post office employees are a bunch of crooks, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी तो ठगों का एक झुंड है। लेंचो, लेंचो, सेंट्रल आइडिया, मतलब केंद्रीय विचार या मुख्य संदेश या मूल भाव। A letter to God portrays Lencho's unwavering faith in God after a hailstorm destroys his crops. A letter to God कहानी में लेंचो का ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास दिखाया गया है, जब ओलों के तूफान से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। He writes seeking 100 pesos, वह 100 पैसों की मदद मांगते हुए एक पत्र लिखता है। Receives 70 from kind post office staff, उसे डाकघर के दयालु कर्मचारियों से 70 पैसों मिलते हैं, yet accuses them of theft, फिर भी वह उन्हीं पर चोरी का आरोप लगाता है। Highlighting blind faith, human kindness and irony, यह कहानी अंधविश्वास, मानवीय दयालुता और विडंबना को उजागर करती है। Summary, लेंचो, a poor farmer, watches. लेंचो, एक गरीब किसान, देखता है, रेन टर्न इनटू अ डेविस्टेटिंग हेलस्टॉर्म, कि बारिश एक विनाशकारी ओलावृष्टि में बदल जाती है, दैट रूइंस हिज कॉर्नफील्ड, जिससे उसके मक्के का खेत बर्बाद हो जाता है, लीविंग हिज फैमिली हंग्री, और उसका परिवार भूखा रह जाता है। फर्मली बिलीविंग गॉड विल हेल्प, ईश्वर से सहायता की उम्मीद रखते हुए, he writes a letter requesting 100 pesos to replant and sustain them. वह एक पत्र लिखकर दोबारा फसल बोने और परिवार का भरण पोषण करने के लिए 100 पैसों की गुहार लगाता है। Amused yet moved, the postmaster and employees collect 70 pesos. डाकघर के कर्मचारी थोड़ा हैरान और थोड़ा भावुक होकर 70 पैसों इकट्ठा करते हैं, sending it anonymously, और उसे गुमनाम रूप से भेज देते हैं। Elated but suspicious upon receiving less,
कम पैसे मिलने पर खुश तो हुआ, लेकिन उसे शक भी हुआ। लेंचो डीम्स इट गॉड्स एड। लेंचो ने इसे भगवान की मदद माना, माइनस थेफ्ट बाय क्रूक्स एट द पोस्ट ऑफिस। लेकिन साथ ही यह भी सोचा कि पोस्ट ऑफिस के बदमाशों ने उसमें से कुछ पैसे चुरा लिए हैं। He writes again, demanding the rest directly. वह फिर से पत्र लिखकर बाकी पैसे सीधे मांगता है, underscoring his innocent, unshakable faith amid human compassion and misunderstanding. मानवीय करुणा और गलतफहमी के बीच अपने भोलेपन और अटूट विश्वास को दर्शाता है। Character sketch of Lencho. Lencho is the protagonist of G.L. Fuen's A Letter to God. Lencho G.L. Fuen's की कहानी A Letter to God का मुख्य पात्र है। Portrayed as a simple, hard-working farmer, उसे एक सीधे सादे और मेहनती किसान के रूप में दर्शाया गया है, whose life revolves around his crops and family. जिसका जीवन उसकी फसलों और परिवार के इर्द-गिर्द ही घूमता है। Introduction means परिचय। Lencho lives on a solitary hill with his wife and children. Lencho अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक सुनसान पहाड़ी पर रहता है, relying solely on farming for livelihood. और अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से खेती पर ही निर्भर है। His strong, ox-like physique reflects his laborious nature. उसका बैलों जैसा मजबूत शरीर उसकी मेहनती स्वभाव को दर्शाता है, while his deep knowledge of weather patterns shows practical wisdom. जबकि मौसम के मिजाज की उसकी गहरी समझ उसकी व्यावहारिक बुद्धिमत्ता को जाहिर करती है। Unwavering faith means अटूट विश्वास। Lencho exhibits blind, absolute faith in God. Lencho ईश्वर में अंधा और पूर्ण विश्वास रखता है, believing उसका मानना है divine help reaches the pure-hearted. कि ईश्वर की मदद केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचती है जिनका हृदय पवित्र होता है। After a hailstorm destroys his harvest, जब ओलावृष्टि से उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है, he writes a letter requesting exactly 100 pesos, तो वह ईश्वर को एक पत्र लिखकर ठीक 100 पैसों की मांग करता है, confident God will provide without intermediaries. क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है कि ईश्वर बिना किसी मध्यस्थ के उसकी मदद जरूर करेगा। मध्यस्थ मतलब निष्पक्ष। Simplicity and naivety means सादगी और भोलापन। Literate yet naive, पढ़ा लिखा होने के बावजूद Lencho's innocence shines in mistaking human charity for God's direct aid. Lencho का भोलापन तब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जब वह इंसानों द्वारा की गई मदद को ईश्वर की प्रत्यक्ष सहायता समझ बैठता है। His straightforwardness and optimism persist amid poverty. घोर गरीबी के बावजूद उसकी सीधी सादी प्रकृति और आशावादी सोच बनी रहती है, making him enduring yet childlike, जो उसे एक प्यारा और बच्चों जैसा इंसान बनाती है। Flaws exposed means कमजोरियां सामने आईं। Ironically, Lencho reveals suspicion and ingratitude upon receiving 70 pesos. विडंबना यह है कि 70 पैसों मिलने पर लेंचो ने शक और एहसान फरामोशी दिखाई, accusing post office staff of theft as crooks in a second letter. उसने अपने दूसरे खत में पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर चोरी का आरोप लगाते हुए उन्हें ठग कहा। This highlights his lack of appreciation for human kindness despite divine trust. यह बात इस बात को उजागर करती है कि ईश्वर पर इतना भरोसा होने के बावजूद उसमें इंसानी नेकी की कद्र करने की कमी थी। Character sketch of the postmaster. The postmaster in G.L. Fuen's A Letter to God serves as a foil to Lencho. G.L. Fuen's की कहानी A Letter to God में पोस्टमास्टर लेंचो के विपरीत एक पूरक पात्र की भूमिका निभाते हैं, embodying human compassion and practicality, जो मानवीय करुणा और व्यावहारिकता का प्रतीक है। Pleasant personality means सुखद व्यक्तित्व। The postmaster is described as fat, friendly and humble. पोस्टमास्टर को एक मोटे, मिलनसार और विनम्र व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। With a jovial nature,
उनका स्वभाव काफी हंसमुख है, that initially leads him to laugh at Lencho's unusual letter to God. जिसके चलते शुरुआत में वे भगवान को लिखे लेंचो के अनोखे पत्र को देखकर हंस पड़ते हैं. His curiosity prompts him to open the letter. उनकी जिज्ञासा उन्हें पत्र खोलने के लिए प्रेरित करती है. Revealing his thoughtful and empathetic side. ऐसा करने पर उनका विचारशील और सहानुभूतिपूर्ण पक्ष सामने आता है, as he becomes deeply impressed by the farmer's unwavering faith. क्योंकि वे किसान के अटूट विश्वास से बेहद प्रभावित हो जाते हैं. Compassionate helper means दयालु मददगार. Moved by Lencho's plight, लेंचो की दुर्दशा से द्रवित होकर या पिघलकर, he organizes charity by collecting 70 pesos from employees, friends, and his own salary. वह अपने कर्मचारियों, दोस्तों और अपनी खुद की तनख्वाह से 70 पेसो इकट्ठा करके दान का इंतजाम करता है, signing the response simply as God to preserve the farmer's belief. किसान के विश्वास को बनाए रखने के लिए वह जवाब पर केवल भगवान के रूप में हस्ताक्षर करता है. This selfless act, यह निस्वार्थ कार्य, demonstrates his generosity, leadership and sensitivity, उसकी उदारता, नेतृत्व और संवेदनशीलता का प्रदर्शन करता है. Toward maintaining others' faith without seeking recognition. बिना किसी पहचान की चाह के दूसरों का विश्वास बनाए रखने के प्रति. मतलब, यह निस्वार्थ कार्य बिना किसी पहचान की चाह के दूसरों के विश्वास को बनाए रखने के प्रति उसकी उदारता, नेतृत्व क्षमता और संवेदनशीलता को दर्शाता है. Disappointed idealist means निराश आदर्शवादी. Despite his noble intentions, अपने नेक इरादों के बावजूद, the postmaster faces irony. पोस्टमास्टर को तब एक विडंबना का सामना करना पड़ता है, when Lencho accuses his staff of theft. जब लेंचो उसके कर्मचारियों पर चोरी का आरोप लगाता है, yet his character shines through unrequited kindness and moral integrity. फिर भी उसकी निस्वार्थ दयालुता और नैतिक ईमानदारी उसके चरित्र को और भी अधिक चमका देती है. Question answer. Oral comprehension check. Page number 5. Question 1. What did Lencho hope for? लेंचो को किस बात की उम्मीद थी? Answer. Lencho hoped for a good rain. लेंचो को अच्छी बारिश की उम्मीद थी, as it was much needed for a good harvest. क्योंकि अच्छी फसल के लिए इसकी बहुत जरूरत थी. Question 2. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्कों जैसा क्यों कहा? Answer. Lencho compared the raindrops with new coins. लेंचो ने बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से इसलिए की, because they were promising him a good harvest. क्योंकि वे उसे अच्छी फसल का वादा कर रही थी, resulting in more prosperity. जिससे और ज्यादा खुशहाली आती. Question 3. How did the rain change? बारिश कैसे बदल गई? What happened to Lencho's fields? लेंचो के खेतों का क्या हुआ? Answer. The rain changed into hailstones. बारिश ओलों में बदल गई. As a strong wind began to blow. क्योंकि तेज हवा चलने लगी, and huge hailstones began to fall along with the rain. और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे. All the crops in Lencho's field got destroyed because of the weather conditions. मौसम की इन स्थितियों के कारण लेंचो के खेत की सारी फसलें बर्बाद हो गईं. Question 4. What were Lencho's feelings when the hail stopped? जब ओले गिरने बंद हुए, तो लेंचो को कैसा महसूस हुआ? Answer. Lencho was filled with grief after the hail stopped. ओले गिरने बंद होने के बाद लेंचो दुख से भर गया, as everything was ruined, क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो चुका था, and there was nothing that he could feed his family with. और उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था. He could see a bleak future for him and his family. उसे अपने और अपने परिवार के लिए एक अंधकारमय भविष्य नजर आ रहा था. Oral comprehension check. Question 1.
Who or what did Lencho have faith in? लेंचो को किस पर या किस चीज पर विश्वास था? What did he do? उसने क्या किया? Answer. Lencho had firm faith in God. लेंचो को भगवान पर पक्का विश्वास था. He believed that God sees everything. उसे यकीन था कि भगवान सब कुछ देखते हैं. Even what is deep in one's conscience, यहाँ तक कि किसी के अंतर्मन की गहराइयों में छिपी बातें भी. And help everyone in one's problems. और वे हर किसी की मुश्किलों में मदद करते हैं. He wrote a letter to God. उसने भगवान को एक पत्र लिखा, demanding him 100 pesos to sow his field again. जिसमें उसने अपने खेत को दोबारा बोने के लिए 100 पैसों की मांग की थी. Question 2. Who read the letter? वह पत्र किसने पढ़ा? Answer. Postmaster read the letter. वह पत्र पोस्टमास्टर ने पढ़ा. Question 3. What did the postmaster do then? तब पोस्टमास्टर ने क्या किया? और What did the postmaster do after reading a letter? पत्र पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर ने क्या किया? Answer. The postmaster laughed when he read Lencho's letter. जब पोस्टमास्टर ने लेंचो का पत्र पढ़ा तो वह हंसा. But soon he became serious. लेकिन जल्द ही वह गंभीर हो गया. And was moved by the writer's faith in God. और भगवान के प्रति लेखक के विश्वास से बहुत प्रभावित हुआ. He didn't want to shake Lencho's faith. वह लेंचो के विश्वास को टूटने नहीं देना चाहता था. So, he decided to collect money and send it to Lencho on behalf of God. इसलिए उसने पैसे इकट्ठा करने और उन्हें भगवान की ओर से लेंचो को भेजने का फैसला किया. पेज नंबर 7. Oral comprehension check. Question 1. Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो को अपने लिए पैसे भरा एक पत्र पाकर हैरानी हुई? Answer. Lencho was not surprised to find a letter with money from God. लेंचो को भगवान की ओर से पैसे भरा पत्र पाकर कोई हैरानी नहीं हुई, as he believed. क्योंकि उसे विश्वास था that God will help him. कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे. Question 2. What made him angry? उसे किस बात पर गुस्सा आया? और What made Lencho angry? लेंचो को किस बात पर गुस्सा आया? Answer. There were only 70 pesos in the envelope. लिफाफे में केवल 70 पैसों थे, whereas Lencho had demanded 100 pesos. जबकि लेंचो ने 100 पैसों की मांग की थी. The difference in the amount made him angry. रकम में इस अंतर के कारण उसे गुस्सा आ गया. Thinking about the text. Question 1. Who does Lencho have complete faith in? लेंचो को किस पर पूरा भरोसा है? Which sentences in the story tell you this? कहानी के कौन से वाक्य आपको यह बताते हैं? Answer. Lencho has complete faith in God. लेंचो को भगवान पर पूरा भरोसा है, as he is instructed, क्योंकि उसे सिखाया गया है, that God knows everything, कि भगवान सब कुछ जानते हैं, and helps us in our problems. और हमारी मुश्किलों में हमारी मदद करते हैं. There are few sentences which show this. कुछ वाक्य ऐसे हैं जो यह दिखाते हैं. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, लेकिन उस घाटी के बीच में बने अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में सिर्फ एक ही उम्मीद थी. There was a single hope, help from God. भगवान से मदद की उम्मीद. All through the night, पूरी रात. Lencho thought only of his one hope. लेंचो सिर्फ अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा. The help of God. भगवान की मदद. Whose eyes, जिनकी आंखें, as he had been instructed, जैसा कि उसे सिखाया गया था, see everything, सब कुछ देखती हैं, even what is deep in one's conscience. यहाँ तक कि किसी के मन की गहराइयों में छिपी बात भी. God, he wrote, हे भगवान, उसने लिखा, if you don't help me, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, my family and I will go hungry this year.
तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे। He wrote to God on the envelope. उसने लिफाफे पर भगवान को लिखा। Put the letter inside. पत्र उसके अंदर डाला। And still troubled, went to town. और फिर भी परेशान होकर शहर चला गया। God could not have made a mistake. भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती थी। Nor could he have denied Lencho what he had requested. और न ही वे लेंचो की मांगी हुई चीज देने से मना कर सकते थे। Question 2. Why does the postmaster send money to Lencho? पोस्टमास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है? Why does he sign the letter God? वह पत्र पर भगवान के नाम से हस्ताक्षर क्यों करता है? Answer. The postmaster sends money to Lencho. पोस्टमास्टर लेंचो को पैसे इसलिए भेजता है in order to keep Lencho's faith in God alive and firm. ताकि लेंचो का भगवान पर विश्वास जीवित और मजबूत बना रहे, as he was completely moved by it. क्योंकि वह लेंचो के विश्वास से पूरी तरह प्रभावित हो गया था। When postmaster reads the letter of Lencho to God, जब पोस्टमास्टर लेंचो का भगवान को लिखा पत्र पढ़ता है, he becomes serious, तो वह गंभीर हो जाता है, and does not want to shake his faith, और लेंचो के विश्वास को टूटने नहीं देना चाहता, and decides to answer the letter. इसलिए वह पत्र का जवाब देने का फैसला करता है। He gathers money with the help of his post office employees and friends on behalf of God. वह अपने डाकघर के कर्मचारियों और दोस्तों की मदद से भगवान के नाम पर पैसे इकट्ठा करता है, and signs the letter God, और पत्र पर भगवान के नाम से हस्ताक्षर करता है, so that Lencho's faith does not get shaken. ताकि लेंचो का विश्वास न डगमगाए। Question 3. Did Lencho try to find out who had sent the money to him? क्या लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश की कि उसे पैसे किसने भेजे थे? Why और why not? क्यों या क्यों नहीं? Answer. Lencho did not try to find out. लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की who had sent the money to him, कि उसे पैसे किसने भेजे थे, because he never suspected the presence of God. क्योंकि उसे कभी भी भगवान के अस्तित्व पर कोई शक नहीं था, and had complete faith in God. और उसका भगवान पर पूरा विश्वास था। He could not believe, वह यह मान ही नहीं सकता था, that it could be anybody else other than him who would send him the money. कि भगवान के अलावा कोई और भी हो सकता है जो उसे पैसे भेजेगा। His faith in God was so strong, भगवान पर उसका विश्वास इतना मजबूत था, that he believed, कि उसे पूरा यकीन था, that he had sent money to him for his help in his problem, कि उसकी मुश्किल में मदद करने के लिए भगवान ने ही उसे पैसे भेजे हैं। Question 4. Who does Lencho think has taken the rest of the money? लेंचो को लगता है कि बाकी पैसे किसने लिए हैं? What is the irony in the situation? इस सिचुएशन में क्या आयरनी है? Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. याद रखें कि किसी सिचुएशन की आयरनी उसका एक अनएक्सपेक्टेड पहलू है। An ironic situation is strange or amusing. एक आयरनिक सिचुएशन अजीब या मजेदार होती है, because it is the opposite of what is expected. क्योंकि यह उम्मीद के उलट होती है। Answer. Lencho thinks, लेंचो को लगता है, that the post office employees have taken the rest of the money, कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई बाकी पैसे ले गए हैं, as he had demanded 100 pesos from God, क्योंकि उसने भगवान से 100 पेसो मांगे थे, and in the letter there was only 70 pesos, और लेटर में सिर्फ 70 पेसो थे, and God cannot make such a mistake. और भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते। So, he assumes, इसलिए वह मान लेता है, that they have stolen the money, कि उन्होंने पैसे चुरा लिए हैं। The irony in this situation is, इस सिचुएशन में आयरनी यह है, that Lencho suspects those people, कि लेंचो को उन लोगों पर शक करता है, who helped him in his problem, जिन्होंने उसकी प्रॉब्लम में उसकी मदद की,
and tried to keep his faith alive in God. और भगवान में उसका विश्वास बनाए रखने की कोशिश की। पेज नंबर 8। क्वेश्चन 5। Are there people like Lencho in the real world? क्या असल दुनिया में लेंचो जैसे लोग होते हैं? What kind of a person would you say he is? आप उसे किस तरह का इंसान कहेंगे? You may select appropriate words from the box to answer the question. इस सवाल का जवाब देने के लिए आप बॉक्स में से सही शब्द चुन सकते हैं। Greedy means लालची। Naive means सीधा सादा। Stupid means बेवकूफ। Ungrateful means एहसान फरामोश। Selfish means मतलबी। Comical means मजेदार। Unquestioning means बिना सवाल करने वाला। Answer: It is almost impossible to find a person like Lencho. लेंचो जैसा इंसान मिलना लगभग नामुमकिन है, as he is an unquestioning and naive kind of person. क्योंकि वह बिना सवाल करने वाला और सीधा सादा इंसान है। He is not stupid. वह बेवकूफ नहीं है। If he doesn't know, भले ही उसे यह न पता हो, who has sent him money, कि उसे पैसे किसने भेजे हैं, और a letter will reach God without any address. या यह कि बिना किसी पते के भी उसका खत भगवान तक पहुंच जाएगा। It is Lencho's faith in God. यह तो भगवान पर लेंचो का भरोसा है। In real world, असल दुनिया में, people are selfish and greedy, लोग मतलबी और लालची होते हैं, and Lencho is totally lovable and different. जबकि लेंचो पूरी तरह से प्यारा और सबसे अलग है। क्वेश्चन 6। There are two kinds of conflict in the story. कहानी में दो तरह के टकराव दिखाए गए हैं, between humans and nature, इंसानों और प्रकृति के बीच, and between humans themselves, और इंसानों के आपस में। How are these conflicts illustrated? इन टकरावों को कैसे दिखाया गया है? Answer: Conflict between humans and nature, इंसानों और प्रकृति के बीच टकराव। The conflict between humans and nature is illustrated by the destruction of Lencho's crop by the hailstorm. इंसानों और प्रकृति के बीच टकराव को लेंचो की फसल के ओलों से बर्बाद होने के रूप में दिखाया गया है। As Lencho was expecting a good rain, क्योंकि लेंचो अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा था, to have good harvest as that was the only hope he had for his earning. ताकि उसकी फसल अच्छी हो, क्योंकि उसकी कमाई का यही एकमात्र सहारा था। He worked so hard to feed his family. उसने अपने परिवार का पेट भरने के लिए बहुत मेहनत की, but nature turned violent and destroyed everything. लेकिन प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया और सब कुछ तबाह कर दिया। Conflict between humans and humans, इंसानों के आपस में टकराव। The story also illustrated another conflict. कहानी में एक और टकराव भी दिखाया गया है, between humans themselves, जो इंसानों के आपस में है। As the postmaster along with his friends and staff sent Lencho money, पोस्टमास्टर ने अपने दोस्तों और कर्मचारियों के साथ मिलकर लेंचो को पैसे भेजे, that Lencho demanded from God. वे पैसे जो लेंचो ने भगवान से मांगे थे। Although they didn't know Lencho. भले ही वे लेंचो को जानते भी नहीं थे। Lencho blamed them for taking away some amount of money. लेंचो ने उन पर कुछ पैसे चुरा लेने का आरोप लगाया। He called them a bunch of crook. उसने उन्हें ठगों का झुंड कहा। This shows, इससे पता चलता है, that man does not have faith in other man, कि इंसान को दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं होता, thereby giving rise to this conflict. और इसी वजह से यह टकराव पैदा होता है। Thanks to watch my video. I hope you understand this well. Meet soon in next video with the most love.